in this lecture that is about the deflection. ठीक है, deflection. Basically what is deflection? Deflection होती है basically, deflection is defined as the virtual displacement of lines, vertical displacement of lines, or rotational displacement of points that is known as rotations. So डिफ्लेक्शंस इन सिंपल वर्ड्स अगर आप देखें कि अगर कोई भी बीम है वो वर्टिकली किस या हॉरिजॉन्टली जो है उसकी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोडिंग उसकी डिफ्लेक्शन मैयर कैसे की जाती है. ठीक है, सो इस डिफ्लेक्शन को मैयर करने के वी हैव डिफरेंट मेथड्स. some of the methods are known as energy methods and some are known as geometrical methods. ठीक है, so the conjugate beam method and moment area theorem are the energy methods or semi-graphical methods as well. So an energy method includes method of virtual work and Castigliano's second theorem. So energy methods we will in theory of structures 1 we will go for energy methods. तो जो दूसरे ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं वो आप पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2 में. ठीक है, या 1 में, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो आप कहाँ पढ़ते हैं. तो मेथड में. ठीक है, सो एनर्जी मेथड्स जो हैं वो उनमें से दो मेथड जो हम करते हैं. द फर्स्ट मेथड इज द नेम मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क. ठीक है भाई, ये बैकग्राउंड में जिनका जो है माइक ऑन है वो काइंडली इसको म्यूट कर लें. ठीक है, सो एनर्जी मेथड्स में हमारे पास जो मेथड है मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क. ये मेथड, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि ट्रसेस पे भी अप्लाई किया जा सकता है, फ्रेम्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है, बीम्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, तो मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क ट्रस के ऊपर अप्लाई करना, बीम पे, बट बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि एनर्जी मेथड्स है एंड दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट एक्सक्यूज मी. Sorry, which states that the work done which states that the work done by all the external forces acting on the structure that is designated by UE is transformed into internal work done or strain energy that is equals to UI. ठीक है जी, that is the basic principle of conservation of energy. On these principles these methods are based on. So by equations UE is equals to UI. ठीक है जी, that is external work done. अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो यू ई एक्सटर्नल वर्क डन की आपको इक्वेशन पता होगी, एफ इंटू डी एक्स होती है. ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो यू गेट दिस वन. सो ऑन द राइट साइड from 0 to x f into dx, that is the area under the curve, and this curve is the linear curve that is plotted against the work done and the displacement. And you can see on the right side, for example, if you have a bar having a length L and if the force is applied on this bar it will produce a deflection of delta, and if you plot these on f and x axis you get this curve line, straight line, inclined line, degree 1 curve, and
that is area under the curve, and that is given by u is equals to 0 to x f into dx. और f की जो इक्वेशन उसने p by delta into x लिखी है, if you put this equation in this equation, so you will get this one u is equals to 0 to delta, and at the end आपके पास जो वर्क डन होगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा. दैट इज द आल्सो द बेसिक इक्वेशन ऑफ वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द वर्क डन. सो दैट इज वर्क डन, दैट इज वर्क डन. अगर यही डिफ्लेक्शन है, इज जस्ट थ्योरी. इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है आइगन वर्क डन का, वो भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है जी, सॉरी रिकॉर्डिंग से कर दिया हूँ. अच्छा, इसमें आपने पी लोड अप्लाई किया, डिफ्लेक्शन आई, आपने इसको प्लॉट कर दिया. आपने फर्दर पी के बाद एक लोड अप्लाई किया, दैट इज एफ प्राइम. यानी कि पहले अगर पी आपने से 10 अप्लाई किया था, so now you are applying 5 more, so it will become 15. I'm just giving you the numerical example. If you apply f prime, so उस f prime की वजह से जो फर्दर डिफ्लेक्शन आएगी, you call it as a delta prime. ठीक है. So if you see on the graph, the work done or the elongation caused by p is delta, and elongation caused by f prime only. F prime means additional 5 आपने लगाया, that is delta prime. ठीक है. So the work done by p and work done by f prime is known as, both these works are known as eigen work. ठीक है. वो work done, the work done by the force which causes the deflection is known as eigen work. अब एक जो वर्क डन है वो देखें कि रेक्टेंगल बन रही है, दो ट्रायंगल बन रही है और एक नीचे रेक्टेंगल बन रही है, ये वाली. इसमें बेसिकली डिफ्लेक्शन तो आई है डेल्टा प्राइम, लेकिन वर्क डन किसके जुमरे में आ रहा है, पी के. so that the work done which is not caused by that particular force is known as displacement work. So any work done is divided in two parts, eigen work and डिस्प्लेसमेंट वर्क. आइगन वर्क वो है जो कि उस इलोंगेशन या उस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जस्ट लाइक पी से डेल्टा आई, एफ प्राइम से डेल्टा प्राइम आई, तो वो दो ऊपर जो ट्राइंगल्स बनी है, बेसिकली द वर्क डन एरिया अंडर द कर्व है, पूरे एरिया के अंडर है. जस्ट समझाने के लिए है कि आपका वर्क डन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है आइगन वर्क और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वर्क. उनको उसने सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ, दैट्स इट, नथिंग important from deflection point of view, just for your knowledge, like this. ठीक है. इस टोटल को ऐड करेंगे तो यू विल सी के वर्क डन एरिया अंडर द कर्व होगा. दैट्स इट. just you should have an idea what is eigen work and what is displacement work. eigen work क्या होता है, work done by the force which is causing this डिफ्लेक्शन. सपोज पी है वो डेल्टा कॉस कर रही है, एडिशनल मैंने एफ प्राइम लगाया वो डेल्टा प्राइम कॉस कर रहा है. तो इन दोनों का वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा, उनकी जो ट्राइंगल्स बन रही है स्मॉल स्मॉल सी, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा और हाफ इंटू डेल्टा प्राइम इंटू एफ प्राइम. लेकिन जो रेक्टेंगल नीचे बच जाएगी एरिया अंडर द कर्व भी, वो डिस्प्लेसमेंट वर्क लाएगा. क्योंकि उसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें उस डिस्प्लेसमेंट वर्क की, तो वो क्या बनती है, डेल्टा प्राइम इंटू पी. दैट इज नॉट जस्टिफाइबल कि जो फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट वो वर्क डन नहीं हो रहा. ठीक है. सो यानी कि एफ प्राइम इंटू डेल्टा प्राइम होता वर्क डन की इक्वेशन में, तो फिर तो ठीक था, बट दैट इज पी इंटू डेल्टा प्राइम. सो दैट वर्क डन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वर्क काज्ड बाय पी. ठीक है. सो दैट द वर्क डन इज डिवाइडेड इनटू सी एस की न्यूमेरिकल एग्जांपल है, 20 किलो न्यूटन है, सिंपल
आप 20 से 1 आया, फिर उसने उसको मज़ीद वर्कलोड लगाया 15 से, तो उसने उसको डिवाइड करके लिखा हुआ है, जस्ट लाइक जो हमने आइगन वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क की उसने एक एग्जांपल की है, बट द वर्क डन इज सेम, एरिया अंडर द कर्व, दैट्स इट। सो इसी तरह that was for the displacement. Similarly, for the rotation or for the calculation of theta, you have the same formula like the deflection, जिस तरह deflection में हम f into डेल्टा करते हैं, यानी कि f into dx करते हैं, इसी तरह मोमेंट में हम करते हैं m into d theta। उसी तरह आपने उसको इंटीग्रेट किया तो यू विल गेट दिस आइगन वर्क एंड मोमेंट। सेम लाइंस पे आप एफ की जगह एम कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन की जगह थीटा कर रहे हैं, उसी तरह आइगन वर्क है और थीटा है, सो दैट इज डिफ्लेक्शन। सो वर्क डन बाय स्ट्रेन एनर्जी जो है, जो आपको इक्वेशन है, इस मेन इक्वेशन है यू ई इज इक्वल्स टू यू आई। बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं, कुछ फ्रेम बीम्स और फ्रेम्स जो हैं वो बेंडिंग एलिमेंट्स हैं, द मेजर कॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग। ठीक है, इसीलिए उनमें जो ड्यू टू बेंडिंग डिफ्लेक्शन है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और जो ड्यू टू डिफ्लेक्शन जो है वो शियर है वो कम होगी, एक्सियल भी कम होगी, क्योंकि मेजर कॉज ऑफ बेंडिंग जो है वो बीम्स और फ्रेम्स में जो है वो दैट इज बेंडिंग। मेजर कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन या वो बेंडिंग है बीम और फ्रेम में। सो बट वी हैव फार्मूला फॉर एवरी टाइप ऑफ इंटरनल फोर्सेस, एक्सियल के लिए भी होता है, शियर के लिए भी होता है, टेम्परेचर के लिए भी होता है। सो दैट इज यू ई इज इक्वल्स टू यू आई की इक्वेशन से आप अगर देखें, बट यू ओनली नीड टू मेमोराइज दिस फार्मूला, डोंट नीड दिस वन। अगर आपकी एक्सियल है तो आपके पास फार्मूला है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e फॉर इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, यू ई इज इक्वल्स टू यू आई है ना, तो इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी जो है वो आपके लिए फार्मूला है यू आई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e a इंटू डी एक्स। एन जो है दैट इज नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल और एक्सियल फोर्स। ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो ये आपने याद रखना, जो येलो कलर में आपके पास 8 नंबर स्लाइड में नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास शेयर है तो शेयर के लिए इंटरनल एनर्जी का फार्मूला जो है दैट इज फॉर द बेंडिंग, सॉरी दिस वन इज फॉर द बेंडिंग, यस बेंडिंग। उसके लिए आपको इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है यू आई इज इक्वल्स टू 0 टू एल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e आई। ठीक है, ये याद रखना फार्मूला, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e आई। इसी तरह शेयर के लिए, टॉर्जन के लिए जो फार्मूला है दैट इज गिवन बाय द फार्मूला दिस वन, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gj। ठीक है, टी इज बेसिकली टॉर्क है, जी है शेयर मॉडुलस, ठीक है, और मॉडुलस और रिजिडिटी भी बोलते हैं, और जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दीज आर द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जी एंड जे दी, if any if you're asked to calculate the uh, deflection caused by these Tardian effects, so then you are given with the G and J। ठीक है, G is the shear modulus और modulus of rigidity and J is the polar moment of inertia। ये फार्मूला आप याद कर लें बस, दैट्स इट। इसी तरह shear के लिए फार्मूला है आपके पास K यू आई इज इक्वल्स टू K इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GA। ठीक है, K जो है वो शेप फैक्टर है और V जो है वो आपके पास शेयर की वैल्यू है। सिमिलरली जी जो है वो शेयर मॉडुलस है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, शेप फैक्टर जो होता है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू होती है 10/9,
फॉर आई सेक्शन दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं और 1.2 भी किसी के लिए होता है, दीज आर गिवन। ठीक है, वी विल सी solve the problem that is known as shape factor. A is known as shape factor. So these are all the formulas, these are for the internal strain energy। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी देखें तो यू ई इज इक्वल्स टू यू आई है। आप नेक्स्ट स्लाइड देखें तो ये देखें प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी क्या कहता है, यू ई इज इक्वल्स टू यू आई। इंटरनल का आपको फार्मूला भी मैंने बताया, वो था एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 EI इंटू डी एक्स। और एक्सटर्नल वर्क डन क्या था, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। वो हमने वो जो वेरी फर्स्ट स्लाइड में जो हमने देखा था। इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी क्या है, एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 EI। हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ से हमने डिफ्लेक्शन निकाल ली। अब ये डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है PL³/3I। इफ़ यू रिमेंबर कि हमने कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगाकर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट की थी, but at that time we have the formula, so we can directly put the values, but here now we have derived the formula। ठीक है, अब इसमें देखें अगर तो आपके पास एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 एम क्या है, मोमेंट इक्वेशन है। मोमेंट इक्वेशन क्या होती है, कैंटिलीवर बीम के अगर फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा हो तो इसके लिए एक सेगमेंट मोमेंट इक्वेशन वैलिड होती है। तो हमने राइट से इक्वेशन लिख ली और वो मोमेंट इक्वेशन बनी पी इंटू एक्स। राइट साइड पे क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट m is equals to minus px। so you can see he has put m की जगह minus px। ठीक है, और फिर उसने लिमिट्स पुट कर दी तो we have derived a formula, and we also know this formula before to calculate the deflection of a cantilever beam when the point load is applied, and that is PL³ divided by 3EI, where P is the point load value, whatever it is, L is the length of the beam, E is modulus velocity cc, and I is the moment of inertia। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मैंने आपको बताया है कि एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल इंटरनल वर्क डन। बेसिक प्रिंसिपल है ये, उस बेसिक प्रिंसिपल को जस्ट एक प्रूफ करने के लिए एक थ्योरी सी है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू फॉर द ट्रसेस। सबसे पहले ये देखिए, अगर आप कोई फिगर नजर आ रही हो, सॉरी, हाँ ना, नाउ यू कैन सी फिगर ऑन स्लाइड 13। वो कहता है एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है हैविंग द मैग्नीट्यूड p, उसको वी से इट p प्राइम एट पॉइंट A। इस ये फोर्स p लग रही है, इस p इज एक्चुअल फोर्स। ठीक है, प्रैक्टिकली वो फोर्स है, उस p की वजह से डिफ्लेक्शन आ रही है, दैट इज डेल्टा। ठीक है, लेकिन जब p आप लोड लगाते हैं जिसकी वजह से आपके पास डिफ्लेक्शन आ रही है डेल्टा, ठीक है, तो जब कोई बॉडी, आप कोई भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसमें डिफ्लेक्शन आती है, तो बॉडी के इंटरनल भी, बॉडी जो है वो इंटरनल कुछ सिंपल सॉरी कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। ठीक है, एक बॉडी है उसके अंदर कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स जो है, लेट्स सपोज कि उन पार्टिकल के अंदर जो फोर्स है दैट इज यू। ठीक है, जब आपने पी लगाई उससे मेन आपकी एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन आ गई डेल्टा। ठीक है, पी फोर्स लगाई, जब आपने फोर्स लगाई तो इंटरनल बॉडी के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो भी तो डिस्प्लेस होंगे, तो वो डिस्प्लेस होंगे, वो कहते हैं इंटरनल जो पॉइंट्स हैं उनको लेट्स दोस पॉइंट्स आर डिस्प्लेस बाय फोर्स यू। ठीक है, और उनकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रही है हर पार्टिकल्स के इंटर पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन या उनकी या वो चेंज हो रहा है, दैट इज DL। ठीक है, तो इंटरनल वर्क डन क्या हो जाएगा,
स्मॉल यू इंटू डी एल, और एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो रहेगा, पी इंटू डेल्टा। ठीक है, पी इंटू डेल्टा, ये हो गया एक्सटर्नल। और इंटरनल क्या हो गया, U इंटू डी एल। अब U इंटू डी एल एक पॉइंट पर नहीं हो रहा, डिफरेंट पॉइंट्स पर बॉडी के हो रहा है इनसाइड द बॉडी, सो वी कॉल इट समेशन, समेशन U इंटू डी एल। अब अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो P इंटू डेल्टा इज इक्वल टू समेशन U इंटू डी एल, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल। सो वी कॉल कि हमने P जो है लोड लगाया इसका मैग्नीट्यूड है, यूनिटी है, सो वी कैन रिप्लेस 1 इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू समेशन U इंटू डी एल। अब डेल्टा क्या है, बेसिकली जो बिग डेल्टा है ये है, और स्मॉल डी एल ये रियल डिस्प्लेसमेंट्स है। मतलब रियल डिस्प्लेसमेंट मींस कि ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हैपन हो रही है, डिफ्लेक्शन आ रही है। और वन जो है, जो लोड हमने पी लोड इसको हमने वन एज्यूम किया, और यू जो उस एज्यूम लोड की वजह से एक एज्यूम वो आ रही है, उसको हम कहते हैं दीज आर वर्चुअल लोडिंग्स। ठीक है, वर्चुअल लोडिंग्स डेल्टा एंड डी एल आर रियल डिस्प्लेसमेंट्स, एंड पी यानी कि जिसको हमने बाद में वन के इक्वल्स पुट किया, वन इंटू यू जो है वो वर्चुअल लोडिंग्स है। सो दिस इज द मेन इक्वेशन, वन इंटू डेल्टा summation sign u into delta, and that is the basic equation of the principle of conservation of energy. External work done is equals to internal work done. Similarly जो है वो आपके पास यही जो है डिफ्लेक्शन की इक्वेशन थी, डिफ्लेक्शन के साथ रोटेशन भी चलती है। तो रोटेशन को हम कहते हैं, मैंने आपको जैसे बाय डेफिनेशन शुरू में बताया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज डिफ्लेक्शन, and rotational displacement of lines is known as rotation। ठीक है, सो डिफ्लेक्शन जो है वो उसके साथ साथ रोटेशन भी होती है। सो इसको अगर हम डेल्टा की जगह थीटा कर दें तो दैट विल बी अ रोटेशन इक्वेशन। सो that was the basic idea of the बेसिक प्रिंसिपल और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है जी, हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है यहाँ तक। इसके बाद नाउ विल गो फॉर द प्रॉब्लम्स डायरेक्टली। पहले इसका इक्वेशन देखेंगे फिर प्रॉब्लम देखेंगे। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द थ्योरी? हेलो। नो सर। सो ये देखें, ये हमारे पास ट्रस है, हमने इसकी डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी। ट्रस की डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने का फार्मूला डिफरेंट है, बीम और फ्रेम का फार्मूला डिफरेंट है। सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट फार्मूलाज, जो कि मैंने आपको बताया था। एक्सियल ट्रस मेंबर्स आर एक्सियली लोडेड मेंबर्स। सो एक्सियल के लिए मैंने आपको बताया था एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EA साइन ऑफ समेशन, और इंटीग्रेशन साइन भी था। ठीक है, इंटरनल। तो अगर आप इस इक्वेशन में, बैक इक्वेशन में, ये वाली एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन में देखें, ये वाली 1 इंटू डेल्टा एंड समेशन यू इंटू डी एल, तो ये राइट साइड वाला इंटरनल इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी और लेफ्ट वाला वो है एक्सटर्नल वर्क डन। तो इस इक्वेशन को देखिए, 1 इंटू डेल्टा साइन ऑफ समेशन इंटरनल वर्क डन, जो इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी उसके लिए थी एक्सियली लोडेड मेंबर्स के लिए, वो क्या थी, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EA into sine of integration from 0 to L। So we can replace sine of integration with the summation। अगर आपके पास इंटीग्रेशन, तो आपके पास एक लेंथ होती है 0 से, हमें इसमें सेगमेंट्स नहीं पता कितने हैं, लेकिन इफ यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स, सो नॉर्मली यू यूज द साइन ऑफ समेशन। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन जो है फॉर द ट्रस कैलकुलेशन ये बन जाती है, डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन की इक्वेशन 1 इंटू डेल्टा इंटू साइन ऑफ समेशन स्मॉल एन बिग एन एल बाय ए। ये इक्वेशन आप याद करें।
वो तो इंटरनल रेस्टोरेंट एनर्जी के लिए थी ना, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, ये फार्मूला आपके प्रॉब्लम्स में यूज होगा। 1 into डेल्टा साइन ऑफ समेशन स्मॉल एन बिग एन एल डिवाइडेड बाई ए ई। अब इसमें 1/1 में पार्ट बता दो। 1 क्या है बेसिकली, मैंने आपको बताया एक्सटर्नल वर्चुअल यूनिट लोड। वर्चुअल का मतलब ये है कि एक्चुअली ये लोड नहीं है, हमने वर्चुअली खुद अप्लाई किया है, और इसी वजह से हम इसको मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क भी कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल virtual unit load acting on a truss joint in the direction of delta, that is 1. Small n क्या है, internal virtual normal force in a truss member caused by the external virtual unit load। ठीक है, ये जो स्मॉल n है ये बेसिकली किस तरह आता है, जब आप तमाम लोडिंग्स को रिमूव करके वर्चुअल लोड, यानी कि वर्चुअल मींस यूनिट लोड अप्लाई करते हैं, उसके अप्लाई करने के बाद जो मेंबर्स में फोर्सेस आती है उनको हम स्मॉल एन कहते हैं। और बिग एन क्या होता है, बिग एन होता है इंटरनल नॉर्मल फोर्स इंटरेस्ट मेंबर काज बाय रियल लोड्स। जो आपके प्रॉब्लम में गिवन लोड्स होते हैं उनकी वजह से जो मेंबर्स में एक्सियली फोर्स आ रही है, वो फोर्स जो है वो बिग एन होती है। L is the length of the member, A is the area of cross section of the member, and E is the modulus of elasticity। ठीक है, so these are all the labeled parameters। ठीक है, स्मॉल एन बिग एन डेल्टा ये सब हो गया, ये फार्मूला आप याद रखें। अच्छा, ये था ड्यू टू एक्सियल, ये आपके ट्रस्ट में डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियली लो फोर्स की वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रही है किसी भी पॉइंट पर, उसका फार्मूला था। अगर आपके ट्रस्ट में टेम्परेचर की वजह से जो डिफ्लेक्शन आती हैं उसके लिए फार्मूला क्या है, 1 into डेल्टा समेशन एन अल्फा डेल्टा टी एल। इसमें एन जो है वही है जो मैंने आपको बताया था, जो यूनिट लोड की वजह से इंटरनल फोर्सेस आती हैं वो हैं। अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी स्लाइड मैंने आगे नहीं की। हाँ, इसमें जो है ये नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें स्लाइड नंबर 15, इसमें 1 अल्फा इंटू साइन ऑफ समेशन एन अल्फा डेल्टा टी एल। डेल्टा के एक्सटर्नल जॉइंट वही डिस्प्लेसमेंट है जो आपने फाइंड आउट करनी है। वन यू नो द virtual load that is in the formula. Alpha is the coefficient of thermal expansion of the member that is given in the problem, and delta G is the change in temperature of the member. So if all these values are given, so you can calculate the deflection caused by the temperature changes। ठीक है, if you have a problem in which these data are given and you are asked to calculate the deflection caused by temperature changes, you'll just put the values in this formula, so that will also gives you the deflection caused by the temperature changes। Fabrication error and cambers, उसके लिए कैम्बर क्या होता है, यू नो, कैम्बर बेसिकली क्या होता है आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कैम्बर बेसिकली रोड को टॉप मास पॉइंट से उठाया जाता है। कोई भी अगर आप हाईवे बिल्ड कर रहे हैं ना, तो उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी शेप जो है ना वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती, टॉप मोस्ट पॉइंट उठा होता है, साइडों पे स्लोप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट टॉप मोस्ट पॉइंट इज नोन एज कैम्बर। कैम्बर का मतलब है कि कर्व्ड, ऊपर टॉप पॉइंट जो है वो कर्व्ड है, क्राउन जिसको कैम्बर भी बोलते हैं क्राउन भी बोलते हैं। द टॉप मोस्ट पॉइंट इज नोन एज क्राउन इज नोन एज कैम्बर। बिल्कुल जो है उस टॉप मोस्ट पॉइंट से थोड़ा सा उठाया जाता है और द ड्रेनेज पर्पस। द टॉप मोस्ट पॉइंट इज नोन एज क्राउन, और उस वो जो स्लोप दे रहा था दैट इज नोन एज कैम्बर। ठीक है, सो ट्रसेस में जो है
फैब्रिकेशन एरर एंड कैम्बर। फैब्रिकेशन एरर जो होता है वो आपने अगर एक चीज़ डिज़ाइन की है से 20 mm और आपने देखा फील्ड में वो कुछ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई तो आपकी वो ट्रस की लेंथ कम होगी ना, सो दैट इज़ नोन एज फैब्रिकेशन एरर। या थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होगी जो डिज़ाइन इंटेंडेड डिज़ाइन से, सो दैट इज़ नोन एज फैब्रिकेशन एरर। अगर फैब्रिकेशन एरर हो या कैम्बर जब दिया रहता है हमें समटाइम्स बॉटम कॉर्ड ऑफ द ट्रस को जो है ना थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा कर्व्ड कनकेव अप कर देते हैं ताकि जब लोड आए तो वो फ्लैट हो जाए, सो दैट इज नोन एज कैम्बर। ठीक है, वो भी हमें समटाइम्स प्रोवाइड करना पड़ता है। सो इन दोज केसेस व्हेन देयर इज फैब्रिकेशन एरर और कैम्बर्स, so we can use the formula 1 into delta sin of summation n into delta L, where n you know the small n क्या है, that is the internal force due to unit load, और डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन है डेल्टा, एंड चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर फ्रॉम इट्स इंटेंडेड साइड एज काज्ड बाय द फैब्रिकेशन एरर। डेल्टा एन जो है वो चेंज इन द लेंथ है। ठीक है जी। सो नाउ वी विल डायरेक्टली गो टू द प्रॉब्लम। सो नाउ उसी के इसमें क्या क्या उसने कहा हुआ है, दिस इज द प्रॉब्लम। The cross-sectional area of each member of the truss shown in figure is A and E, this one। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सी ट्रस है। ठीक है, ये लोडिंग आपको रियल लोडिंग जो है वो ये गिवन ट्रस है आपको शो हुई हुई है। उसने क्या क्या पूछा है, नंबर 1 उसने पूछा है डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी ऑफ ए 4 किलोन्यूटन फोर्स अप्लाइड एट सी। लेकिन उसने डिस्क्राइब कर दिया कि ट्रस के सी जॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल टच में 4 किलोन्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है। पहला तो हमने ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी, सिंपल। ठीक है, दूसरे वाले में उसने कहा है इफ नो लोड एक्ट्स ऑन द ट्रस what would be the vertical displacement of joint C if member AB 5 millimeter too short। यानी कि हमने जो फैब्रिकेशन और कैम्बर वाला फार्मूला है वो अप्लाई करना है बी वाले पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए। सी वाला क्या कहता है, इफ 4 kilonewton force and fabrication errors are both accounted, what would be the vertical displacement of joint C। वो कहता है कि अगर A और B, पहले में तो हमने A अलग फाइंड आउट किया डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल, फिर B वाले पार्ट में हमने अलग फाइंड आउट की। कहता है अगर इन दोनों को इकट्ठे कर दिया जाए तो व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या करना है, C वाले पार्ट में A और B वाले आंसर को ऐड कर देना, तो आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट C आ जाएगी। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट ए वाला जो है वो बेसिक है, ट्रस की रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपने समझे वो वाला फार्मूला यूज करना है जो आपके पास है, जो है NNL बाई, जो मेन फार्मूला है। ये टेम्परेचर और ये जो है फैब्रिकेशन एरर है वो अलग से आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम पहले वाले पार्ट के लिए जाते हैं। सबसे पहले हमने पहले वाले फॉर पार्ट ए के लिए हम आ गए। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अगर किसी को कंफ्यूजन है पूछ ले, दैट इज द बेसिक्स ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रसेस। हमारे पास फार्मूला क्या है, साइन ऑफ समेशन 1 into delta is equals to sin of summation small n big N L by AE। as you can see in the slide, I will just first load all the slides। ठीक है, as you can see in the slides, every member, we have 3 members AB AC and CB। तो साइन ऑफ समेशन का मतलब है कि 3 मेंबर्स का सम होना है टोटल। यू विल मेक अ टेबल। ठीक है, उसमें आपने एक कॉलम बनाना है मेंबर के नाम से, सबसे पहला कॉलम मेंबर। मेंबर के बाद आपने उसके कॉलम बना लेना है स्मॉल एन, फिर आपने बिग एन, फिर आपने एल। ठीक है, फिर आपने एक कॉलम बना लेना है एन एन एल का, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का एक कॉलम बना लेना है। ठीक है, ये टोटल 4 कॉलम्स आपके बन जाएंगे, एन स्मॉल एन बिग एन, लेंथ का कॉलम, लेंथ जो कि गिवन। भाई ये म्यूट कर लो यार जिसका भी है माइक।
और एल, यानी कि आपने स्मॉल एन फाइंड आउट करना है, फिर बिग एन करना है, लेंथ आपको गिवन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना लेंगे एन एन एल। ठीक है, ए ई अगर तमाम मेंबर्स के लिए सेम और कांस्टेंट है तो उसको आप एंड पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो प्रॉब्लम गिवन है जिसमें आपके पास गिवन लोडिंग भी है जो कि 4 किलोमीटर एट सी है, आपने एज इट इज इस पूरी ट्रस का एनालिसिस कर देना है। हाउ मेनी मेंबर्स वी हैव इन दिस ट्रस? 3। आपने इन तीनों मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट कर लेनी है। जो टेंशन होगी वो प्लस होगी, जो कंप्रेशन होगी वो नेगेटिव होगी। जो भी आपकी फोर्स आएगी दैट विल बी बिग एन। बिग एन क्या है? इंटरनल नॉर्मल फोर्स और इंटरनल एक्सियल फोर्स ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग, जो कोई आपके प्रॉब्लम में आपको गिवन है। ये वाला, ये देखिए, अगर मैं स्लाइड पीछे करूं तो बैक स्लाइड पे जो प्रॉब्लम आपको गिवन है वो आपका गिवन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को एज इट इज जब आप एनालाइज करेंगे, उसके रिएक्शंस फाइंड आउट करके उसके मेंबर में फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास जो फोर्सेस आएंगी दीज विल बी कॉल्ड एज बिग एन। वो आपने हर मेंबर के आगे उसके कॉलम में लिख लेनी है। यानी कि अगर 3 मेंबर्स हैं उसको आपने एसी की जो फोर्स आएगी आपने उसके बिग एन के कॉलम के सामने लिख लेनी। 3 कॉलम बना लेना, तो बिग एन के सामने जो उसकी फोर्स आएगी तो वो आप यहाँ देखें, इसने कैलकुलेट की हुई है। एसी की फोर्स है +2.5, सीबी की फोर्स है -2.5 और AB की फोर्स है 2। So these are all the 3 forces. These are given. ठीक है, अब आपने ये काम कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है आपने? अब ये करना है कि आपने अप्लाइड लोडिंग जो 4 किलो न्यूटन है ना इस प्रॉब्लम में, आपने इसको रिमूव कर देना है। जो भी अप्लाइड लोडिंग है 4 किलो न्यूटन है या कोई और लोड भी इस पे जहां भी लग रहा होता, आपने तमाम रियल लोड्स को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने जिस पॉइंट के ऊपर जो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने हैं, सपोज ने कहा ना डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोले या वर्टिकल डिफ्लेक्शन बोले एक ही बात। डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी, तो यानी कि आपने वर्टिकल यूनिट लोड अप्लाई करना है सी के ऊपर। वर्टिकल यूनिट लोड अप्लाई करना है सी के ऊपर। जब आप वर्टिकल यूनिट लोड अप्लाई कर देंगे सी पर और रियल लोड्स रिमूव होंगे, फिर आपने इसके रिएक्शंस कैलकुलेट करके इसके इंटरनल फोर्सेस फाइंड आउट करनी है मेंबर्स में, जस्ट लाइक यू डू इट्स सेम मेथड ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, उसने अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहा है तो वर्टिकल यूनिट लोड लगेगा। सपोज वो कहता कि जॉइंट सी के ऊपर, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, कह सकता है आगे किसी प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें, सो आप फिर उस जगह पे हॉरिजॉन्टल लोड लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड लगाते हैं, क्योंकि उसने वर्टिकल कहा है तो वी आर अप्लाइंग द वर्टिकल यूनिट लोड। ठीक है, जब आप वर्टिकल यूनिट लोड लगाएंगे उसके दोबारा से रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू विल कैलकुलेट द इंटरनल forces in the members caused by virtual unit load, and these will be represented by n, क्योंकि एक स्मॉल n के कॉलम में आप फोर्सेस लिख लेंगे। यानी कि ए सी के लिए फोर्स आ रही है -0.833। बिग एन का कॉलम भी फिल हो गया 3 मेंबर्स का, स्मॉल एन का भी फिल हो गया। लेंथ जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, वो आप उस लेंथ को उधर लिख लें, तो फिर आप इन तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें एन एन एल, जो इनका अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होती है। जो नेगेटिव टेंशन जो पॉजिटिव होगी, कंप्रेशन जो नेगेटिव होगी।
आप इन तीनों का एंड पे मेंबर्स का समेशन कर लें, एन एन एल वाले कॉलम का सम कर लें। ठीक है, सम से भी कर सकते हैं, इसने फिगर से प्रॉब्लम में किया हुआ है, और उसको ए ई से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी योर डिफ्लेक्शन। ये देखिए, ये एन एन एल है ना, तीन फिगर्स, इसने इसको मल्टीप्लाई करके एन एन एल को मल्टीप्लाई, 10 माइनस 10.41 माइनस 10.4, ये कैंसिल हो गया, पीछे सिर्फ एक रह जाना, 10.61। ठीक है, तो ये आपका 10.6 आ गया, एन एल डिवाइडेड बाई ए ई जो है वो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ ऑल दीज मेंबर्स इज सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया ई इज 2 into 10 पावर 200 into 10 पावर 6। ठीक है, और 200 10 पावर 9 200 गीगा पास्कल होती है। ठीक है, तो ये गीगा पास्कल ही बन जाता है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपको डिफ्लेक्शन आ रही है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई है यहाँ 0.133 millimeter. The value of the deflection is positive. The positive answer indicates that the deflection is in the direction of the unit load. यानी कि अगर यूनिट लोड मैंने डाउनवर्ड लगाया था, आई हैव अप्लाइड द डाउनवर्ड यूनिट लोड, सो इसका मतलब है डिफ्लेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया। इन केस इसी प्रॉब्लम में मेरा आंसर नेगेटिव आता से मेरी डिफ्लेक्शन आती -0.133। सो इट मीन्स कि मैंने एज्यूम क्या किया था, मैंने यूनिट लोड डाउनवर्ड लगाया था और आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब मेरा डिफ्लेक्शन जो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में है। बट हेयर इन दिस केस, as my answer is comes out to be positive, so my deflection is in downward direction, so that's why I have indicated with the arrowhead as well. ये तो था पहला वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में उसने कहा था कि इफ ए बी मेंबर 5 मिलीमीटर टू शॉर्ट, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, आपको बताया था, फैब्रिकेशन एरर वाला फार्मूला लगेगा, और वो फार्मूला क्या है, n इंटू डेल्टा एल। एन ऑलरेडी आपने अब कैलकुलेट किया हुआ है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट मैनी टाइम्स इफ यू वुड लाइक टू कैलकुलेट फॉर द फैब्रिकेशन एरर। और ए बी मेंबर के लिए आपको पता है क्या एन की वैल्यू है, ये देखें, क्योंकि ए बी मेंबर शॉर्ट है, बाकी तो शॉर्ट नहीं है ना, तो स्मॉल एन की वैल्यू ए बी मेंबर के लिए 0.667। तो आपने क्या करना है, फार्मूला क्या था, 1 इंटू डेल्टा इंटू साइन ऑफ समेशन एन इंटू डेल्टा एल, यानी कि आपके पास आ जाएगा 0.67 इंटू डेल्टा एल। शॉर्ट है तो माइनस लेंगे, लॉन्ग है तो प्लस लेंगे, तो 5 मिलीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट किया, तो डेल्टा सी भी हमारे पास आ गई -3.33 मिलीमीटर। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है इस केस में कि मेरी डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, that is in the upward direction because I have applied the unit load in downward direction. तो यहाँ से आपके पास दूसरे वाले पार्ट का आंसर। पार्ट सी में मैंने आपको बताया था, उसने कहा था इफ 4 किलोन्यूटन फोर्स एंड फैब्रिकेशन एरर्स आर बोथ अकाउंटेड, सो रिफ्लेक्शन क्या होगी, इन दोनों आंसर्स को अलजेब्रिक सम कर दें, तो आपके पास आ रहेगा 0.133 माइनस 3.33, दैट इज -3.20। तो अल्टीमेटली जो आपका इन दोनों की वजह से डिफ्लेक्शन आ रही है, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, so that is 3.20, and that is your answer, and that's what you have to calculate in this particular problem. And is this clear? Is this clear? सर यस जी सर। जी, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये जो हमने डिफ्लेक्शन फाइंड की है ए बी मेंबर पे जो शॉर्ट हो गया था, सर हाँ हाँ, इसमें जो सिर्फ वही लेना है जिस पे शॉर्ट हो रहा होगा सर, जी ये बिल्कुल। सारे। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, देखें, उसने हमें आप खुद बता दिया ए बी, अगर वो कहता ए बी मेंबर 5 mm शॉर्ट है और ए सी मेंबर 6 mm लॉन्ग है, तो हम क्या करते हैं, साइन ऑफ समेशन तो है इसका, मतलब आप क्या करते हैं, 0.667, ये तो इसी तरह कर लेते हैं, इंटू 0.0005 प्लस, फिर करते प्लस -0.833 इनटू, अगर लॉन्ग होता
तो 0.006 कर देते, इन तमाम को सॉल्व करते तो आपके पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट सी आती by incorporating the fabrication of errors of these two members. Right now we have only one. वो तीनों में भी कर सकता, तो हम तीनों में करते, फिर उनके उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, जो अगर कोई वो बताता ना फिर हर एक की किसकी लॉन्ग है किसकी शॉर्ट है। तो एट द मोमेंट हमने सिर्फ एक मेंबर में करनी है जिसमें उसने कहा है। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू। सो दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पर यूनिट लोड लगाना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर आप देखें, determine the vertical displacement of joint C of steel truss shown, the cross sectional area of each member is this and this one। अब उसने कहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर आप देखें, दैट इज डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। सिंपल, उसने उसमें और कोई नहीं प्रॉब्लम में कुछ कहा, तो वी हैव टू ओनली फाइंड आउट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखें जो ट्रस आपको गिवन है आपने उसकी रियल लोडिंग के साथ उसका एनालिसिस कर लेना है। वी हैव 1 2 3 4 5 6 9 मेंबर्स है, आपने कॉलम बनाना है, उसके 9 रोज होंगी, ठीक है। उसमें हर मेंबर का नाम लिखें, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, ए एफ, बी एफ, बी वट एवर द नेम्स, ठीक है। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट नंबरिंग से आपको फिर यहाँ देखना पड़ेगा, बट बेटर टू नेम द मेंबर्स एज गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले इस ट्रस्ट में क्या करना है, हमारे पास फार्मूला वही है, एन स्मॉल एन बिग एन एल बाई ए ई, दैट्स इट, 1 इंटू डेल्टा। आपने क्या करना है, बिग एन तो फाइंड आउट करना ही है, हर मेंबर्स की जो लेंथ इंटरनल फोर्स है उसको फाइंड आउट कर लें। मैंने पहले बताया टेंशन को पॉजिटिव लिखेंगे, कंप्रेशन को नेगेटिव। 9 रोज का एक कॉलम बिग एन वाला फिलअप हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम में उसने कहा डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी। अब आप क्या करेंगे, मैंने बताया था हम लोड्स रिमूव कर देंगे। सो यू विल रिमूव ऑल द लोड्स, कौन कौन से हैं, 4 किलो न्यूटन के लोड लग रहे हैं, आप इन दोनों को रिमूव करेंगे और सी के ऊपर एक यूनिट लोड लगाएंगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन एज वी आर कैलकुलेटिंग द वर्टिकल डिफ्लेक्शंस। सो आप उसके ऊपर यूनिट लोड लगाएंगे, फिर इस ट्रस के रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे और तमाम 9 मेंबर्स में आप फोर्स फाइंड आउट करेंगे विच विल बी स्मॉल एन, जो कि यहाँ देखें, ये देखें इसने 1 अप्लाई किया और ये मेंबर्स में फोर्सेस फाइंड आउट कर ली, फिर बिग एन कर लिया, ये फोर्सेस फाइंड आउट होगी। सो नाउ जो लेंथ जो है वो आपको पता है, स्मॉल एन बिग एन लेंथ, आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एन एन एल कॉलम में कर दिया, इसने तो फिगर्स में कर दिया, और उसके बाद इनका अलजेब्रिक सम कर लेंगे और तमाम इफ ए एंड ई, ए ई फॉर ऑल द मेंबर्स इज कांस्टेंट देन यू कैन डिवाइड एट द एंड, अदरवाइज यू कांट डू दैट, ठीक है। यू कैन डिवाइड एट द एंड, मतलब समेशन करने के बाद कर, अदरवाइज एन एन एल ए बाई ए ई वाला फैक्टर जो है वो करना पड़ेगा। स्लाइड्स आपको आ रही हैं? नो सर। अभी अभी चली गई है, मैं फिर लेके आता हूँ।
वैसे तो मैं आपको लेक्चर दूं, आप अपने पास ओपन करें, यहाँ स्लाइड सम टाइम बड़ी स्लो चलती है। ठीक है, मैं इसको आगे कर रहा हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेगी, एनिमेशंस हैं इसमें इसलिए। सो आपने फिर क्या करना है कि स्मॉल एन फाइंड आउट कर लेना है और उसको डिवाइड करके आपने उसकी डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ गया, इट मींस कि आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब अपवर्ड में है, कि आपने अगर रियल लोड डाउनवर्ड लगाया है। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रॉब्लम आ गया। ठीक है जी, ये हमने बिग एन स्मॉल एन करके मल्टीप्लाई किया सिंपली, और एल ए ई से डिवाइड करके ये हमारे पास रिफ्लेक्शन आ गई, दैट इज 1.23 मिलीमीटर डाउनवर्ड है। पॉजिटिव आंसर, इट मींस रिफ्लेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज आल्सो वन अनदर प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा उसने तमाम केसेस टेम्परेचर और फैब्रिकेशन एरर्स को काउंट किया। वो कहते हैं डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी ऑफ स्टील ट्रस शोन। ठीक है, ड्यू टू द रेडिएंट हीटिंग फ्रॉम द वॉल। मैम देखें आप, टेम्परेचर चेंजेस भी आ गए ना, जिसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो था साइन ऑफ समेशन एन अल्फा डेल्टा टी इनटू एल। ठीक है, डेल्टा टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू रेडिएंट हीटिंग फ्रॉम द वॉल। Member subjective to temperature change. Member AD is increased plus 60, DC plus 40, and AC is decreased minus 20. Also, member DC is fabricated 2 millimeter too short and AC 3 millimeter too long. Take alpha A and E is this one. So उसने कहा है कि आपने इसमें vertical displacement of joint C find out करनी। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपने क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से कर रहे हैं तो वहाँ जो है, और फैब्रिकेशन एरर की वजह से कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यू मे नॉट नीड टू कैलकुलेट द बिग एन, बिकॉज आपने एक्सिल की वजह से भी करना पड़ेगी ड्यू टू, हाँ डेफिनेटली वो भी कर लें, उसमें क्या मसला है। आपने बिग एन ही फाइंड आउट करना ना एक्स्ट्रा। आप सबसे पहले इस ट्रस पे जो लोड लगे उनको रिमूव, 20 और 10 को रिमूव करें। सी के ऊपर वर्टिकल है तो आपने सी के ऊपर यूनिट लोड लगा दें। स्मॉल एन फाइंड आउट कर लें हर मेंबर में आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द रिएक्शंस। फिर बिग एन फाइंड आउट कर लें जो आपके पास रियल लोडिंग की वजह से लेंस आपको गिवन है। इसी तरह आप जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लें पहले, ड्यू टू दी नॉर्मल डिफ्लेक्शन है ड्यू टू लोडिंग फोर्सेज, जिसको आप एक्सियल लोडिंग कहते हैं। तो आपके पास जो वो डिफ्लेक्शन आ जाएगी दैट इज 2.44 मिलीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें आपने डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोडिंग्स फाइंड आउट करनी है जो आपको रियल लोडिंग लगी हुई। अब इनमें उसने ये कहा है कि कुछ मेंबर जो है वो, इसमें इसने कहा कि ये वाला पार्ट तो बड़ा आसान है, ये तो हम आप कर सकते हैं। दूसरा वाला पार्ट भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आप देखें। मेंबर एडी इज एन इंक्रीज, एडी जो मेंबर है इसमें प्लस 60 का इंक्रीज है, डीसी में आपके पास 40 का, एसी में 20 का डिक्रीज है, यानी कि 3 मेंबर हैं उनमें आपकी टेम्परेचर चेंजेस आ रही है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, अगर आप फार्मूला देखें तो वो है एन अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। तो साइन ऑफ समेशन के साथ एन आपको हर एक का गिवन है, वो आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। ये देखें हर एक का एन जो है वो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, स्मॉल एन। ठीक है, तो जिस जिस मेंबर में एन अल्फा तो कांस्टेंट है, वो आप बाहर भी लेके इकट्ठा भी कर सकते हैं, साइन ऑफ समेशन के एंड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा टी
डेल्टा टी यहाँ पॉजिटिव प्लस 60 इंटू एल, लेंथ उस मेंबर की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो उसका टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज अब हम कर रहे हैं। देखिए एन अल्फा डेल्टा टी एल, ये देखिए जो जो मेंबर प्लस है और माइनस है इन तीनों को हमने वो कर लिया, लेंथ आपके पास आ गई, ये आपने फार्मूले में उसकी वैल्यू डाल दी, अल्फा को बाहर ले गई कांस्टेंट के साथ, N163 ये हर चीज़ आपको गिवन है, यहाँ से आपने कैलकुलेट किए तो ड्यू टू आपके पास आ गया टेम्परेचर चेंजेस जो है वो आ गई 3.84, पॉजिटिव आया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज यू हैव अप्लाइड द यूनिट लोड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह आपने फैब्रिकेशन एरर्स, ड्यू टू फैब्रिकेशन एरर्स आपने करना है। उसने कहा कि फैब्रिकेशन एरर में उसने क्या कहा, उसने कहा कि टू मेंबर्स जो हैं वो एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, तो जो शॉर्ट है उसको माइनस के साथ कर देंगे। उसके लिए फार्मूला आपको पता ही है, एन अल्फा एन इंटू सॉरी डेल्टा एल, तो एन आपने कैलकुलेट किया हुआ है, दो मेंबर्स हैं फैब्रिकेशन एरर से, तो ये आपने दो मेंबर्स में वो अप्लाई कर दिया ये फार्मूला, तो उसके बाद जो है वो यहाँ से आपके पास ये आ गया, ये आया माइनस में। इसका मतलब ये कि ड्यू टू फैब्रिकेशन एरर जो है, जो आपकी वैल्यू आई है वो माइनस आई है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन आपकी सी पॉइंट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस। और अगर इन तमाम लोड्स की वजह से टोटल करना हो, इन तमाम फैक्टर्स को काउंट करते कि आपकी रीलोडिंग्स भी हों, टेम्परेचर चेंजिंग्स भी हों, फैब्रिकेशन, तो इन तमाम को आप अलजेब्रिक सम कर लेंगे, तो जो आपका अल्टीमेट आंसर आएगा वो आपकी डिफ्लेक्शन होगी सी पॉइंट के ऊपर, यानी कि 2.44 प्लस 3.84 माइनस 4.93। तो अगर अलजेब्रिक सम पॉजिटिव आ रहा है 1.35 से, इसका मतलब है कि आपकी ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रसेस, deflection of the trusses, and due to temperature and fabrication errors all these factors are considered now. Is this clear? Is this problem is clear Yes. to all of you? हाँ जी, ये क्लियर है? यस सर। हाँ, तो Yes, इसको sir. जो है वो आप डिफ्लेक्शन जो है ट्रसेस को हम देख लें, नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह जब हम फिजिकली करेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में, फिर हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स और फ्रेम्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रसेस। आई होप कि इतना मुश्किल नहीं है, एक सिंपल सा फार्मूला है, उसकी एप्लीकेशन है, जो मेथड ऑफ जॉइंट ऑलरेडी आपने किया हुआ है। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस टू एनीवन रिगार्डिंग द लेक्चर, एनी कंफ्यूजन in these problems and in this lecture? क्लियर है? हाँ जी, क्वेश्चन है तो पूछें, मैं पे रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर रहा हूँ।